Done. Yes. So child psychology is a branch that particularly focuses on the mind and behavior of the child, and that is from paternal stage to adolescence stage. So paternal stage to adolescence stage of the child has been discussed in child psychology, and that too mind and behavior. It is not just limited to how children grow physically, but also with their mental, emotional, and social development. मीन चाइल्ड साइकोलॉजी में हम उसके मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं. Child psychology is the pattern of growth and process often divided for convenience into 5 stages. And these 5 stages are: one is the prenatal period. Prenatal period इसको कहते हैं. That period is from conception to birth. मीन्स 9 मंथ का जो पीरियड होता है वो प्री नटल पीरियड होता है. देन इन्फेंसी आफ्टर बर्थ टू फर्स्ट 2 year. Early childhood 2 to 6 year, that we have already discussed all the ages. And middle childhood is 6 to 9, and pre-adolescence 9 to onset of adolescence, जब तक वो adolescence की एज में नहीं आ जाता. And adolescence की एज जो ब्रैकेट है वो हम लोग उसको यंग वाले साथ स्टडी करते हैं. सो दीज 5 एजेस और स्टेजेस चाइल्ड साइकोलॉजी इन सब के बारे में अलग अलग से डिस्क्राइब करती है. Following are some of the major contexts that must be considered while analyzing the child psychology. वो कौन कौन से मेजर कॉन्टेक्स्ट हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी जिसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग. मीन्स एज इज द इम्पोर्टेंट, विच एज वी आर गोइंग टू स्टडी इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी, और इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट. वन इज द सोशल कॉन्टेक्स्ट में सोशल में बच्चा किस तरह से बिहेव करता है या किस तरह से उसका माइंड काम करता है, that is social context. The second is cultural heritage. Context में हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी करेंगे in different 5 stages. And the next is socio-economic context, जहां हम उस बच्चे को इकोनॉमिक कल्चर ऑफ द स्टेट, इकोनॉमिक कल्चर ऑफ द नेशन के बारे में साथ साथ सोसाइटी के साथ लिंक करके
तब उसका बिहेवियर एंड उसके माइंड की फंक्शनिंग को हम जो स्टडी करते हैं, तो that also comes under the child psychology. सो इन ब्रीफली चाइल्ड साइकोलॉजी में हम जो बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन सब के विकास को डिफरेंट डिफरेंट एज पर जो स्टडी करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी में 5 स्टेज में हम लोग बच्चे की माइंड की और बिहेवियर की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, क्यों करते हैं? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी? सो फर्स्ट है फॉर सेलेक्टिंग द सुटेबल प्रोग्राम। मीन्स बच्चे के लिए हम लोग को, हमें एज ए टीचर, which suitable program has to be select, that is being decided by learning of child psychology. So the knowledge of child psychology can helpful in selecting a daycare program or handling children's temper, tantrum, etc. मीन्स हम बच्चे को किस तरह की हम लोग उनकी नर्सरिंग करें, उनका बिहेवियर किस टाइप का है, और उस बिहेवियर को हम लोग किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से उसको मोटिवेट कर सकते हैं, दैट ऑल कम्स फ्रॉम चाइल्ड साइकोलॉजी। फॉर इंक्रीजिंग द हैप्पीनेस by knowing the fact or by knowing the behavior of the child and by knowing the mind function of the child, we can choose the strategically some playway method or some guiding techniques or some nurturing techniques so that child may become more happy. So child psychology suggests the way and the mean to realize adjustment of human being at different stages of life. Understanding how a child feel, it enables us to understand how child feel and in what way they differ from adults. इसकी भी हम लोग, चूंकि एक लाइन डायरी ड्रॉ की गई है कि इस एज तक हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के हम लोग अंदर इसकी स्टडी करेंगे। मींस अप टू द चाइल्ड बर्थ, सॉरी, अप टू द इंसेप्शन टू अप टू द एडोलसेंस एज तक हम लोग स्टडी चाइल्ड साइकोलॉजी में करेंगे। किस टाइप, क्या बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो क्यों हैं, वो अपने एडल्ट से किस तरह से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। And the next is for detecting the deviant development. You know, सबका development same नहीं है. If the development is being deviant, why it is? So that is possible by knowing the child psychology or by knowing the concept of child psychology. यहाँ कुछ पाइनियर्स हैं जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में डिटेल स्टडी किया है, जिसमें स्टैनले हॉल है 1846 से 1924, एंड ही रेफर्ड टू एज ए फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। मीन्स साइकोलॉजी की टर्म को, साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को, चाइल्ड साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट दिया, दैट वाज गिवन बाय स्टैनले हॉल। Watson is also most child psychologists try to make child psychology as a natural science by introducing objective research method based on observable and measurable behaviors. तो ये एक बिहेवियरिज्म के फॉलोअर के रूप में भी इनको वाटसन के रूप में भी हम देखते हैं। एंड नेक्स्ट इज सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड इज द वेरी फेमस नेम in terms of child psychology because he has given some techniques of psychoanalysis of the theory of this sexual development, and his two major contributions to the psychology. इन्होंने जो सिगमंड फ्राइड ने बच्चा किस तरह से बिहेव करता है अपनी मदर के साथ, उसको बहुत डीपली डिस्क्राइब किया है सिगमंड फ्राइड ने। Then this Arnold Gesell seems to have believed that child's development is guided primarily by genetic process and the environment play only a minor role. Means जेसल ने कहा कि नहीं, जो बच्चे के डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज जेनेटिक, मीन्स हेरिडिटी।
इम्पोर्टेंट का रोल है पर उतना नहीं है जितना हेरिडिटी फैक्टर्स का है. And the one is the also good name. He has also given very wonderful theory and wonderful concept of child psychology. That is Jean Piaget. Jean Piaget is the most influential development theorist to date. Piaget ideas have inspired more researcher, and his conception of human development has revolutionized thinking about children and their behavior. Why his theory is so important. देखिए, पर जितने भी आपने साइकोलॉजिस्ट के नाम, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के नाम सुने और देखे हैं, उन सब ने स्टडी किया है चाइल्ड पर, लेकिन वो स्वयं का चाइल्ड. पियाजे ने जो स्टडी किया वो अपने खुद के चाइल्ड पर, कि वो कैसे ग्रो करता है, कैसे वो ग्रैप्स करता है, किन किन स्टेज में वो किस किस तरह का बिहेवियर एक्ट करता है. ही डिड ए वेरी थ्योरेटिकल स्टडी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. इसको हम आगे भी पढ़ेंगे. इन्होंने किस तरह से कौन कौन सी इन्होंने कैटेगरी, कौन कौन से स्टेजेस इन्होंने आइडेंटिफाई की पियाजे ने. So Piaget differ from other pioneers discussed here in that his theoretical view are widely accepted in some from or other by many contemporary child psychologists. जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा जो थ्योरी एक्सेप्ट की गई है वो पियाजे की, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी के, इसको हम द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे के नाम से भी जानते हैं. सो ही हैज गिवन वेरी डिटेल्ड थ्योरी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. अब इसको आगे से डिस्कस करेंगे इसको अलग से. प्री स्कूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. देखिए, आइडियली द बेस्ट प्री स्कूल जानते हैं आप लोग, डेट इज होम, बिकॉज इट इज द फर्स्ट होम. और यहाँ पे मदर के साथ में वो एक गुड एनवायरनमेंट एंजॉय करता है चाइल्ड. बट यहाँ थोड़ी सी इशू ये हो जाते हैं कि कई बार पेरेंट्स मे नॉट अवेयर हाउ टू नर्चर, हाउ टू केयर द चाइल्ड. And for that, our role as a teacher roles become important to guide the parents and how we should nurture, how we should take care of our child. But उसके बाद में होम के बाद में, चूंकि होम में देखिए मदर इज द फर्स्ट टीचर, देन अदर हैं, फादर हैं, देन ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, उनके जो सिबलिंग्स हैं, देन पीयर ग्रुप हैं. So that is also a big institution, but it is kind of informal type of institution, but it has very, very, very important role for the development of the child. Then there, after the school, the preschools is the place for the development of the child. Preschool not a place of for formal education. It is the halfway house between the home and the school, and it is a kind of connecting link which make it a transition from former to later smooth. मीन्स आपने प्री स्कूल में बहुत बच्चों को एक तरह से होमली एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसके साथ साथ थोड़ी सी नॉलेज, सम नॉलेज अबाउट द नेचर, एनवायरनमेंट, एंड सम नॉलेज ऑफ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ साइंस, साइंटिफिक थिंग्स एंड आर्ट्स, क्ले एंड ऑल. तो यहाँ पर बच्चों को प्लेवे मेथड से कुछ नया नॉलेज देने का प्रयास किया जाता है प्री स्कूल्स में. एंड आफ्टर द प्री स्कूल्स, द प्री प्राइमरी education, and that become important for providing the healthy and all-round development of the child. The chief prerequisite to learning is learner's readiness to learn, as I said. जब तक बच्चा देखिए, लर्निंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रूल है. मैंने पहले भी कहा कि पढ़ने वाला पढ़ने को राजी हो. द लर्नर शुड बी रेडी टू लर्न. पढ़ाने वाला पढ़ाने को राजी हो, मीन्स द टीचर शुड रेडी टू टीच. तो यहाँ पर लर्नर्स अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो लर्निंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लर्नर्स रेडीनेस टू लर्न. टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द रेडीनेस. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे को पढ़ने के लिए रेडी करते हैं? वन इज द मैचुरेशन एंड द सेकंड इज द एक्सपीरियंस. जैसे जैसे बच्चों में मैच्योरिटी आएगी, दे बिकम्स इंटरेस्टेड टू लर्न.
And the second is experience. Experience means which type of school environment. If the school environment is healthy and lovely and cohesive for the child, so they take interest or going to school in next day also. If the learning environment is not good, so child थोड़ा सा वो डेविएट होते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप आउट का इशू ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली इन रिमोट एंड रूरल एरियाज. सो नेचर ऑफ लर्निंग एट प्री स्कूल, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह की नेचर होती है प्री स्कूल में, किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं. क्योंकि यहाँ इनफॉर्मल और प्रिपरेटरी स्टेज है, जैसे कहा कि बिल्कुल होमली एनवायरनमेंट होता है. एंड प्री स्कूल्स टू प्रोवाइड इक्विपमेंट, एनकरेजमेंट एंड गाइडेंस इन ए लर्निंग इन ए वाइड वैरायटी ऑफ प्ले स्कूल. प्री स्कूल में मैक्सिमम एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म बाय play skills, means that may be the skills of individual and that may be the group. There may be the group task and there may be the individual activity. But in preschools, most of activities are being, or knowledge is being acquired by doing some activity. So preschool is illustrated with reference to two basic subject of primary school. क्या है उसमें? लैंग्वेज एंड नंबर्स. प्री स्कूल में बेसिकली हम लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं और नंबर्स पर, विच नंबर इज स्मॉल, विच नंबर इज बिग एंड 1 2 3 अप टू. तो ये हम एक छोटा सा हम लोग उनको बच्चों को नॉलेज देने का प्रयास करते हैं प्री स्कूल में. तो इस टाइप की लर्निंग प्री स्कूल में होती है. लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? कन्वर्सेशन कराते हैं, स्टोरीज, नेचर टॉक एंड सॉन्ग्स में उनको इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट वी मे अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज इशूज. स्टोरीज एंड सॉन्ग्स मीन्स रामायण एंड महाभारत इज आल्सो इम्पोर्टेंट लिटरेचर फॉर चाइल्ड लर्नर्स, क्योंकि उससे भी उनकी बहुत सारी वोकेबलरी और बहुत सारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी एनरिच होती है. Background experiences, find out what experiences they have had, make up the deficiency in their experiences. जो भी उनकी डेफिशिएंसी है उनको हम लोग रिमूव करके उनको नरिश करते हैं, ताकि उनकी लैंग्वेज डेवलप हो सके और उनके जो इश्यूज हैं वो कम अप हो सकें विद द गुड सॉल्यूशंस. रीडिंग एंड राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर डेवलपिंग द लैंग्वेज. As far as numbers are concerned, so preschool में हम लोग क्या करते हैं? Preschool children should be presented with a variety of concrete situations where they get practical experience in weighing, measuring, buying and selling, handling money, etc. These may be the small activity. Means आपका वेट कितना है, कल कितना वेट था, आज कितना हो गया, by measuring हाइट कितनी है, ये सब. और उनको कुछ पैसे दिए कि हाउ दे विल हैंडल आफ्टर द परचेजिंग द थिंग्स फ्रॉम द शॉप. सो दीज आर द बेसिक concept to develop the language competency as well as numbers competency among the children by preschool teachers. सो नेक्स्ट है कि किस टाइप के टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए चाइल्ड स्टडी के लिए. यह हम लोग पढ़ेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है चाइल्ड स्टडी करना. देन व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर चाइल्ड स्टडी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस मेथड्स यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस. किस तरह के वो लोग बिहेव करते हैं एंड एप्लीकेशंस ऑफ चाइल्ड स्टडी. सो लेट अस टेक क्विकली वन बाय वन. सो फर्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? You know, although we have a general idea because we have discussed in previous unit, क्योंकि child psychology teachers जब तक नहीं जानेंगे, they will not be able to different stages up to the adolescence age and what kind of learning should be given or what kind of teaching should be taught in the school. Preschools means numbers, language and their group activity, coloring,
and this clay task. So that इसलिए बच्चे के लिए बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास में कहाँ जरूरत है एक टीचर की गाइडेंस के लिए, उसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. सो चाइल्ड स्टडी प्रोवाइड ए विंडो टू द चाइल्ड्स वर्ड्स by learning the child psychology. We enter in the child's world. It enables us to understand how they feel and in which way डू दे डिफरेंट, वो किस तरह से वो डिफरेंट करते हैं. क्योंकि जैसे बताया कि इस लेवल पर, प्री स्कूल लेवल पर, या चाइल्ड जो आपका 2 to 6 प्री स्कूल एज है, इसमें जो बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास की जो स्पीड है that found very rapid as compared to other stages. So इस स्टेज में the role of teachers and school environment and family environment becomes very important for the further development of the child. So methods of studying child psychology should be the objective, organized, systematic and real. Means child psychology को understand करने के बाद हम लोग उनको बच्चे में जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हैं इस तरह से ऑर्गेनाइज हैं, और उनको हम सिस्टमेटिक मीन्स जैसे हमने पढ़ा कि डिफरेंट एजेस हैं, उन डिफरेंट एजेस में किस तरह से सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट हो रहा है. जैसे जीन पियाजे ने बताया कि देयर आर 4 स्टेजेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड देन उसके बाद बहुत सारी उसने डिटेल दी है कि इतने से इतने साल तक बच्चे ये सीखते हैं, उनमें ये लर्निंग कैपेसिटी इन्वॉल्व होती हैं. यहाँ 2 अप्रोच हैं चाइल्ड स्टडी की, एक है क्वांटिटेटिव अप्रोच और एक है क्वालिटेटिव अप्रोच. क्वालिटेटिव में हम बच्चे के बिहेवियर में जितनी क्वालिटी एस्पेक्ट हैं, ट्रेट्स हैं, हम लोग उनको स्टडी करते हैं. एज फार एज क्वांटिटेटिव मेथड, यहाँ जैसे IQ है, व्हाट इज द IQ, 130 है, 140 है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ IQ ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड, इंटेलिजेंस का लेवल क्या है. सो दीज कम्स अंडर द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ चाइल्ड स्टडी. ये 2 चाइल्ड स्टडी की अप्रोच हम आगे भी इनको पढ़ेंगे. पहले हम लोग लेते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ द चाइल्ड स्टडी. मीन्स यहाँ हम लोग कुछ क्वांटिटेटिव चीज नहीं, जैसे कि हम लोग ऑब्जर्वेशन, किसी बच्चे का हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं फॉर मीनिंगफुल एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड कैन बी स्टडीड. Observe a child interaction under the specific circumstances in a laboratory setting from behind a one-way mirror. When the observation of the behavior of the child is conducted in the natural environment, it is called नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. देखिए सिंपल सी बात है, बच्चे प्ले ग्राउंड में अकेला खेल रहा है, तो जस्ट ऑब्जर्व हिज और हर बिहेवियर. उसके साथ उसके 2, 3, 4 और पीयर ग्रुप आ जाते हैं, तब उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है. वो और डिफरेंट हो जाता है अगर उस प्ले ग्राउंड में उनके टीचर या मेंटर आ जाते हैं. जब हम लोग टीचर्स या मेंटर्स की उपस्थिति में बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, सो दैट इज ए काइंड ऑफ लेबोरेटरी सेटिंग. मीन्स हमने उसको एक कंडीशन उसमें डाला हुआ है, तो वहाँ हम उसका नेचुरल और रियल बिहेवियर हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे. तो हमें बच्चे की अगर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करना है तो उसको हमें तब करना है जब वो अपने आप में इन्वॉल्व हो, अपने आप में मस्त हो, अपने आप में प्ले कर रहा हो, रीडिंग कर रहा हो, राइटिंग कर रहा हो. देन वी शुड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. सेल्फ रिपोर्ट इज आल्सो वन ऑफ द क्वालिटेटिव अप्रोच. इसमें भी हम एक बच्चे को कलेक्ट करते हैं डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. मीन्स उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद उसको इंटरव्यू के फॉर्म में हम पूछते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं, कई बार उसके पेरेंट्स से पूछते हैं, कई बार उनके टीचर्स से पूछते हैं. उसके बेस पे हम लोग सेल्फ रिपोर्ट क्रिएट करते हैं ऑफ द चाइल्ड, दैट व्हाई द लर्नर इज परफॉर्मिंग सच एक्ट. So a self-report involves collecting the data directly from participants by asking them to answer some questions. There could be 2 forms of self-report, that may be the interview or questionnaire.
दिस मेथड हैज बीन फॉलोइंग डिफेक्ट्स। लेकिन ये इंटरव्यू एंड क्वेश्चनेयर में एक डिफेक्ट है। पहला, देखिए बच्चा आपके फियर हो सकता है आपके, चूंकि आप जब पूछ रहे हैं उससे कुछ भी सवाल, तो बच्चा मे नॉट रेस्पॉन्स प्रॉपर और मे नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन और मे नॉट react actual behavior. So these are the basic defects. The children may not give the correct answer as he may be prone to conceal the trait. There is no device to evaluate the validity of response received. A children may not understand a certain question, hence they may give wrong answer. When the questionnaire is sent away to parents, आपने देखा होगा कई बार पेरेंट्स ही उसके बच्चे का सारे टिक लगा देते हैं अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। The parents and teacher may not like to reveal certain defect of the children as they consider them as reflection upon themselves. So बच्चे से अगर पूछा जा रहा है तो कई बार स्कूल में तो उनके टीचर ही भर देते हैं, क्योंकि अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता या उसको समझ में नहीं आ रहा है, they understand that it may be their उनका अपना लगता है कि उनको उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर बच्चा नहीं प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करेगा। सम फॉल्स पॉइंट्स आर एडेड इन द आंसर। कई बार जो रिपोर्ट बनाता है वो भी कुछ अपने आप आगे पीछे कुछ जोड़ सकता है, तो ये कुछ बट you people has to prepare the report as per your assignment, as per your task. You have to observe the child for a particular period and on particular aspect and will prepare some report and will submit. So ये भी एक आपको टास्क है MES 085 का, वो आपको टाइम से मैं और डिटेल में बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दीज डिफेक्ट देर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनेयर मेथड, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। एक तो पहला है कि ये रिटन में है। जो भी आपके पास आपने अगर ऐसे वर्बल इंटरव्यू लिया है, स्टूडेंट ने आपको क्या बताया, चाइल्ड ने आपको क्या बताया और आपने उसको क्या रिकॉर्ड किया, तो दैट मे बी डिफर। बट अगर आपका क्वेश्चनेयर प्रॉपर है तो आपने जो बच्चे का आंसर लिया है वो आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा। So this, apart from these defects, there are certain advantages of the questionnaire method. Method help finding out many answer his own children within a short time. Thus, much time is saved by this method. This method also enable us to know the point of view of parents and teachers about their children. So questionnaire आप भराते हैं तो उससे एक आपका टाइम सेविंग होता है और एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में या आपके पास रिटन फॉर्म में जो डेटा है वो कलेक्ट होता है। सॉरी, क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ द चाइल्ड स्टडी। जस्ट मिनट, एक मिनट। So case study is also an intensive study of a specific individual in or a special context which help in getting detailed information about the individual development. Freud developed case study of several individuals as the basis of theory of psychoanalysis. Piaget is also did a case study on his own children to study the development phases. तो ये जो स्टडी चाहे वो सिगमंड फ्राइड ने किया हो या जीन प्याजे ने किया हो, उन्होंने बच्चे के विकास पर एक थ्योरी डेवलप की और इनको हम दोनों को इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और आप चाहें तो गूगल से पढ़ सकते हैं, सिगमंड फ्राइड एंड जीन प्याजे थ्योरी, लेकिन हम इसको नेक्स्ट कमिंग सेशन में पढ़ेंगे। The case study provide extensive data which gives detailed picture of development process of an individual and explain various factors. Means family भी हो सकती है, इसकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, स्कूल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं। These are the various factors which might affect the development of the child. This method provide useful input for giving appropriate guidance of child. Next. As far as this अदर मेथड्स मीन्स इंटरव्यू मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें क्वेश्चनेयर बनाते हैं।
Diary descriptions may be the other method, then we note the day-to-day activity of the child. लॉग और जर्नल्स भी एक इम्पोर्टेंट है, हम लोग स्कूल में ये लोग ज़्यादा चलते हैं. उसके बाद में एनेक्डोटल रिपोर्ट, इट इज ए डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव रिकॉर्ड विच इज यूज टू डिटेल स्पेसिफिक बिहेवियर फॉर द चाइल्ड. वन इज अ चेकलिस्ट. चेकलिस्ट में मीन्स हम उसमें डिफरेंट पैरामीटर रख लेते हैं, जैसे बच्चे की क्या बोलते हैं वो, ये बालों में तेल लगा हुआ है, द हेयर्स आर प्रॉपरली ऑयल्ड, टिक लगाना यस और नो. और उसके बाद वेल ड्रेसअप है, यस. उसकी हाइट इंक्रीजिंग है, यस. वेट इंक्रीजिंग है, यस. तो इसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं. जो जो चीज़ हमें मिलती जाती है उसको हम टिक लगाते जाते हैं. द नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल में हम लोग 5 पॉइंट और 3 पॉइंट, इसको हम लिकर्ट मेथड्स भी बोलते हैं. इसमें 3 पॉइंट में क्या होते हैं, जैसे गुड, बैड, न्यूट्रल. जैसे हमने स्टूडेंट से पूछा कि एप्पल खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, उसमें बच्चा का अपना अपना ओपिनियन, अगर वो लाइक करता है तो वो लगेगा गुड, उसको गुड पे लगाएगा. नहीं लाइक करता है तो बैड. और अगर मिल जाए तो खा लिया, ना मिले तो कोई बात नहीं, उसको न्यूट्रल रहता है कि इट्स ओके. 5 पॉइंट स्केल लिकर्ट का सेब, उसमें 5 पॉइंट आ जाते हैं. स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री. किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के प्रति बच्चे का बिहेवियर किस टाइप का है, कि वो उसको स्ट्रांगली एग्री है उससे, या एग्री है, या न्यूट्रल है, या डिसएग्री है, या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री है. सो दिस इज नॉन एज लिकर्ट्स 5 स्केल रेटिंग. एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जैसे डू यू बीट द चिल्ड्रंस, अदर चिल्ड्रंस, सो नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज. इसको हम 3 टाइम्स लिकर्ट स्केल बोलते हैं. इसी को डू यू स्टिल, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, ये 5 पॉइंट स्केल है. मैं आपको एक लिकर्ट का 5 पॉइंट का मैं एक, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो आई एम शेयरिंग द किस तरह का होता है लिकर्ट का 5 स्केल. जस्ट वेट, अगर है तो. इट इज ओपनिंग. Ankit IST, Ankit RST. Just a minute.
So this is the example of rating scale, that there is a statement that IGNOU offers MBA through online as well as the ODL system as per the recommendation of NEP 2020. अगर किसी भी MBA स्टूडेंट से हम पूछते हैं तो his or her answer may be strongly agree, neutral, disagree और strongly disagree. तो यहाँ एक स्टेटमेंट के आगे एक 5 ऑप्शंस होते हैं, उसको हम लोग लिकर्ट्स 5 पॉइंट रेटिंग स्केल बोलते हैं. तो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरह से आप क्वेश्चनेयर बनाएंगे, और चूंकि बच्चे हैं इसलिए आपको खुद ही टिक करना होगा या उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर की हेल्प से टिक करना होगा. Yes, so दिस इज द स्केल जो हम लोग बनाते हैं, रेटिंग स्केल. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव मेथड. अब तक हमने जितने भी मेथड पढ़े वो क्वालिटेटिव मेथड थे. नाउ द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ द चाइल्ड स्टडी. एक्सपेरिमेंटल मेथड इज अ वन ऑफ देम, कि हम एक बिल्कुल लैब की तरह, जैसे बच्चे को हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं और एनवायरनमेंट को या डिफरेंट सिचुएशंस को हम लोग एक लैब के रूप में रखते हैं और उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं. कि जैसे मैंने कहा कि बच्चे को अगर वो ओपनली खेल रहा है तो रियल उसके वो होंगे. अगर इफ वी अलाउ द चाइल्ड under the monitoring of teachers and others, so his behavior will definitely different. So in experimental method the variables are controlled. मैंने कहा यहाँ पर कंट्रोल्ड करते हैं कि वो alone किस तरह का बिहेव करता है, अपने peer ग्रुप में किस तरह से बिहेव करता है, और अगर टीचर्स यानी कि कोई somebody is monitoring तो उस को किस तरह से बिहेव करता है. बट इसमें एक ही डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने कहा कि समटाइम्स वो एक्चुअल अपना बिहेव शो नहीं कर पाता अगर वो टीचर के सामने हैं या पेरेंट्स के सामने हैं, बिकॉज ऑफ फियर एंड ऑल. सो यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. इट इज नेसेसरी दैट द चाइल्ड इज प्रोवाइडेड ए नेचुरल एनवायरनमेंट व्हेन दिस मेथड इज यूज. मीन्स एक्सपेरिमेंट आपको बच्चे का, चाइल्ड का बिहेवियर पर करना है तो उसको उस तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट देने की जरूरत है. The second is psychometric method. It is also very popular method for studying the children, and इसमें हम लोग psychometric में उसमें mental abilities पढ़ते हैं, educational achievement, interest, personality traits are measured by this method, and this is the most scientific method of the measurement. Psychometric कुछ test होते हैं which are available in National Psychological Lab. You can also ask them to send a psychological test of particular areas, child behavior का या child mental attitude का या child attitude का या child aptitude का, ये all tests are available in National Psychological Lab. There are very important, that is clinical method. Clinical method आपने देखो जो बच्चे को abnormal behavior में उनको किस तरह से सही behave करें, वो उनका हिस्ट्री जान करके, उनसे कुछ पूछ करके, सम टेस्ट उन पे लगा करके, तब हम लोग साइको एनालिसिस करते हैं. और ये दैट इज बीइंग बेसिकली बाय द एक्सपर्ट. ये क्लिनिकल मेथड कैन नॉट बी conducted by us because we are not aware, so much aware about the clinical method. नेक्स्ट इज द प्रोजेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है जिसमें हम लोग देखिए एक बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और देन उसको प्रोजेक्ट करते हैं रियल सिचुएशन में. सपोज कीजिए जैसे आपने एक, और दैट प्रोजेक्टिव मेथड इज बीइंग यूज्ड इन बेसिकली मोस्टली इन सिलेक्शन ऑफ आर्मी पर्सनल. एनडीए सीडीएस में ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज होती है. इस टेक्निक्स में क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स
उसको ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे बच्चे को एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें बहुत ज़्यादा मार धाड़ है, तो अगर कोई बच्चा डर रहा है, इसका मतलब ही और शी इज नॉट फिट फॉर डिफेंस जॉब और डिफेंस एरिया। अगर कहीं पर क्लासरूम एनवायरनमेंट की या क्लासरूम टीचिंग की अगर कोई मूवी दिखाई जा रही है, अगर बच्चा उसको इंटरेस्ट लेकर के देख रहा है कि हाउ टीचर इज बिहेविंग, तो इस तरह से उसके एक प्रोजेक्शन करते हैं कि बच्चा अगर टीचर के बिहेवियर को अच्छा समझ रहा है, उसको अच्छे से ग्रास्प कर रहा है, इट मीन्स हिज और हर इंटरेस्ट मे बी इन टीचिंग। तो दैट इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। और यहाँ जो इन्वेस्टिगेटर है वो भी लिटिल बिट साउंड हो अबाउट द चाइल्ड साइकोलॉजी, तभी वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को अप्लाई कर पाएगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड बिहेवियर। डिजाइन ऑफ चाइल्ड स्टडी किस बेसिकली यहाँ लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होती है और क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स एक बच्चे को एक लंबे समय तक 1 महीने 2 महीने 4 महीने हम उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करें और टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। क्रॉस सेक्शनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, बच्चे को जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक बच्चे को ना ऑब्जर्व करके बिग ग्रुप में वो बच्चा किस तरह से बिहेव करता है, और सिमिलरली उसको अगर अकेले में हम ऑब्जर्व करते हैं तब वो किस तरह का बिहेव करता है। दूसरा, उसको हम स्कूल में उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, होम में ऑब्जर्व करते हैं। सो दैट इज क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। Child is one, but his behavior in school, in family, in peer group, ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट के हम क्रॉस सेक्शनल अप्रोच को स्टडी करके एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड क्या हो सकता है। The limitations and advantage of longitudinal and cross sectional approach. The longitudinal approach is more expensive, क्योंकि इसमें लंबे समय तक हमको टाइम देना पड़ता है, खर्चा भी, अगर बच्चा बहुत दूर है तो उसको आने जाने में ऑब्जर्व करने में भी हमको मनी एक्सपेंस भी लगता है। तो ये क्रॉस सेक्शनल में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं, क्योंकि एक ही बच्चा हमें लेना है और वो डिफरेंट, उसी को एक दिन में स्कूल में क्या बिहेव कर रहा है और आपके घर में क्या बिहेव कर रहा है पीयर, तो उसको 1 या 2 दिन में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल एक गुड रिजल्ट देती है, बट ये इसलिए थोड़ा सा लिमिटेशन है कि ये दैट मे बी कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सपेंसिव। एप्लीकेशन ऑफ चाइल्ड स्टडी, बेसिकली इसका पर्पज ये है कि हम चाइल्ड स्टडी को हम क्यों करें। तो पहला है कि हम लोग उसको चाइल्ड स्टडी करने से इंडिविजुअल पोटेंशियल से अवेयर हो जाते हैं। बच्चे में इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या है, या उसका एक तरह से उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटेलिजेंट लेवल क्या है, ठीक है, उनका एटीट्यूड क्या है। और ये हम करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, है ना, पर्सनैलिटी टेस्ट। So these tests are available, or by conducting or by administrating these kind of psychological tests, teachers get understanding the individual potential of the child. Ability grouping, यहाँ हम लोग जो हमें डराइव होता है वेरियस जो टेस्ट होते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं। तो the learner in class or area of activity can be divided into the homogeneous group। और बेसिकली इसमें क्या है ना, हम बच्चों को देखना चाहते हैं कि कौन से बच्चों का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, कौन से बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में है, कौन से बच्चों का इंटरेस्ट आर्ट्स में है। तो बाय डूइंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट हम लोग उनका इंटरेस्ट अंडरस्टैंड करके या एनालाइज करके हम लोग उनको डिफरेंट ग्रुप में भी बांट सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। आपने देखा होगा कि आफ्टर 10th सॉरी यस 9th नो 8th और आफ्टर 10th, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि बच्चों को कौन सा स्ट्रीम दिया जाए। साइंस 10th में मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल दिया जाए, या दूसरा जो आपका जो
साइंटिफिक जो मैथ है वो दिया जाए, यानी कि जो प्योर मैथमेटिक्स है वो दिया जाए। सिमिलरली आफ्टर 10th मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, या आर्ट्स है, कॉमर्स है, इन सब की ग्रुपिज्म भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट से कर सकते हैं। Adjusting the curriculum to meet out the requirement of learner, the curriculum should be flexible and differentiated as much as possible so that learner may get opportunity to study and work in the area of their own interest and abilities. मीन्स साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम कैरिकुलम में भी थोड़ा सा अपने स्कूल लेवल पर, अपने क्लासरूम लेवल पर हम उसको एज ए टीचर उसको हल्का फुल्का मॉडिफाई कर सकते हैं कैरिकुलम में। द अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नोइंग द फैक्ट, बाय नोइंग द चाइल्ड बिहेवियर, हम लोग अपने टीचिंग मेथोलॉजी में भी चेंज करते हैं टाइम टू टाइम। और ये हमारी जो डिफरेंट रिसर्चेस हैं हम उसको भी वो हमारे लिए वो हैं एक तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रूप में, कि by doing grouping, by doing and by analyzing the child individual differences, टीचर्स ऑलवेज अपना टीचिंग मेथड, चूंकि वो उनको डिफरेंट ग्रुप में बना करके किसी को ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया, किसी को वहाँ पर एक पीयर ग्रुप लर्निंग भी इसी में इन्वॉल्व हो जाती है। सो चाइल्ड साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर फॉर यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग। द अडॉप्टिंग स्पेशल प्रोग्राम और मेथड फॉर इंडिविजुअल, यहाँ भी एक है कि अगर कोई बच्चा, कोई पर्टिकुलर बच्चा वीक है तो उसके लिए हम वेरी स्पेसिफिक और प्लान्ड और प्रोजेक्ट मेथड यूज करके उन बच्चों को हम लोग एनेबल कर सकते हैं टू लर्न देयर ऑन देयर पेस, ऑन देयर इंटरेस्ट। सो दिस इज द स्पेशल प्रोग्राम या पर्टिकुलर मेथड फॉर इंडिविजुअल। This is next unit, that is child guidance. What are the principle and procedures? इसमें हम लोग गाइडेंस को पढ़ेंगे। बेसिकली गाइडेंस होती क्या है, किस तरह की टाइप्स हैं गाइडेंस के, और इम्पोर्टेंस क्या है प्री स्कूल लेवल पे गाइडेंस की, और द प्रोसेस, किस तरह का प्रोसेस हम लोग चाइल्ड गाइडेंस में यूज करते हैं, एंड काउंसलर है क्या। गाइडेंस है तो गाइडेंस, हु प्रोवाइड द गाइडेंस, गाइडेंस प्रोवाइड by the counselor. Yes, so this is guidance, just starting within 15-second or 30-second break. दिलीप कुमार क्या पूछ रहे हैं, असाइनमेंट किस किस ने बना लिए। सी असाइनमेंट सबको बनाने हैं, और ये आपको असाइनमेंट कब जमा करने हैं, बाय 31 मार्च। ओके, सो टीचर ऑलरेडी एक गाइड होता है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं कि गाइडेंस क्या है। In common parlance, guidance is a process of helping individual in adjusting to themselves, to others,
and to do their own peculiar situations. Guidance is a process of assisting an individual with his or her adjustment problems. So बेसिकली बच्चे की जो चाइल्ड के जो डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसमें अगर चाइल्ड को लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी जो हैबिट्स हैं वो सोशल हैबिट्स हैं उनकी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ऐसे में जो भी उनको सही और गलत के बारे में बता रहा है या उनको सही ये इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, इस तरह से पढ़ना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह से गाना चाहिए, इस तरह से डांस करना चाहिए, दैट ऑल आर गाइड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गाइडेंस। सो गाइडेंस इट्स एम एंड फंक्शन की अगर हम बात करें, गाइडेंस इज ए पर्सनल असिस्टेंस। यहाँ इंडिविजुअल असिस्टेंस होती है। इट कैन बी गिवन इंडिविजुअली और इन ए ग्रुप। जैसे कि अगर हम कहें कि ग्रुप में मॉर्निंग असेंबली में कि बच्चों को रो में साथ अपनी क्लास में जाना, तो दिस इज काइंड ऑफ गाइडेंस। वो या फिर एक बच्चे को बुला के कहा जा सकता है कि आपको हमेशा अपने रो में या क्यू में चलना चाहिए। तो ये गाइडेंस, जो भी गाइडेंस है, चाहे वो लर्निंग से संबंधित हो एज आई सेड, और चाहे वो अदर डेवलपमेंट एस्पेक्ट से संबंधित हो, that is given by a person who is known as guide. So guidance service of trained guidance personnel, career masters, psychologists and counselors के द्वारा दी जाती है। ऑल आर गाइड। जो पर्सनल गाइड है वो भी गाइड है, कैरियर मास्टर्स है वो भी गाइड है, साइकोलॉजिस्ट है वो भी गाइड है, काउंसलर्स है वो भी गाइड है। So guidance aim at preparing individual for the future life. It help in acquiring essential abilities and capacities to accomplish task in future. It also help in selecting a proper profession and role in the society. Hence, the guidance has both personal and social significance. पर्सनल ये है सिग्निफिकेंस कि बच्चा खुद चीज़ों को सीखता है और उसका जो इम्पैक्ट है वो सोशल पे पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है। अगर बच्चा प्रॉपरली बिहेव करने लग गया तो सोसाइटी में सब लोग उसको अच्छा कहेंगे, दे फील बेटर, दे फील गुड। इफ द पर्सन इज एबनॉर्मल बिहेविंग, सो वो सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। किस तरह की गाइडेंस हो सकती हैं? द एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस वही है कि जो एजुकेशन से संबंधित बच्चों को जो प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको जो सही राय, सही सलाह जो दी जाती है, दैट इज एजुकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस इज रेंडर, जो आपका वोकेशनल एस्पेक्ट्स हैं या जो वोकेशन से संबंधित हैं, जिसको लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर प्रोसेस, इन सबको जो बताया जाता है, जो चाइल्ड लेवल पर या अपर लेवल पर, दैट कम्स अंडर द वोकेशनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस तो जैसे आपने पहले भी समझा होगा कि बेसिकली गाइडेंस पर्सनल ही होती है, चाहे वो ग्रुप में दी जाए, चाहे वो इंडिविजुअलाइज दी जाए, क्योंकि उसको वो अकेला उसको वो ग्रैप्स करता है कि उसको क्या सही है क्या गलत है। बट एज फार एज दिस फोकस्ड पर्सनल गाइडेंस की हम बात करें तो इट कंस्टिट्यूट द पर्सनल एंड इंडिविजुअल एडवाइस ऑफर्ड बाय ए गाइड टू ए इंडिविजुअल फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ लेटर्स पर्सनल प्रॉब्लम। यहाँ किसी व्यक्तिगत अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसमें जो सलाह दी जाती है, दैट कम्स अंडर द पर्सनल गाइडेंस। लेकिन गाइड में कौन कौन? काउंसलर हो सकता है, टीचर हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। शेर सिंह or one other. जस्ट
यस, सो टीचर भी एक गाइड है, एंड प्री स्कूल में जितनी भी गाइडेंस एक्टिविटी होती है दैट इज डन बाय टीचर्स. सो टीचर हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड गिव द नेसेसरी हेल्प इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट. Early guidance of the child helps the child to adjust in new situations and develop the ability to face problems and resolve them. जैसे बच्चा स्कूल में प्लेग्राउंड में फुटबॉल को किस तरह से किक करना है, वो भी अगर मेंटर या कोच सिखाते हैं तो वो भी एक गाइडेंस है. A child is flexible in his early years, and any problems of child have less time to become deep rooted to resist modification. जैसे अगर किसी को पानी से फियर लगता है तो वहाँ टीचर्स रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पानी से डरना नहीं है, वाटर, बट हाँ पानी में अननेसेसरी उसको डूबना नहीं है या उसमें जाना नहीं है. सो ये जो फियर है दैट कैन बी removed by a proper guidance. Parents भी are keenly considered about their young ones in school, and their cooperation and help can be easily obtained. So इस गाइडिंग्स में पेरेंट्स से भी बात की जाए तो भी प्रॉपर गाइडेंस बच्चे को दी जाती है. Many years of adjustment lie ahead of the child to grow and develop. ये प्रॉपर गाइडेंस पेरेंट्स को या बच्चे को उसके फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है. गाइडेंस गाइडिंग प्री स्कूल चिल्ड्रंस इन्वॉल्व हेल्पिंग देम विद देयर लर्निंग प्रॉब्लम्स. अगर उनको कोई लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं या उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उसको हम कैसे एंजॉयबल और कैसे हम लोग प्रॉपर एंगेजिंग करके उन बच्चों को एक प्ले वे मेथड से सिखा सकते हैं, उसमें भी टीचर का रोल एज ए गाइडेंस ही, एज ए गाइड ही होता है. सो टीचर कैन बी कंसिडर्ड एज ए गुड गाइड फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट. बट अगर हम बहुत स्पेसिफिक हो जाएं, चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग. चाइल्ड गाइडेंस हेल्प द चाइल्ड इन एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशंस. During guidance, a child develops the ability to solve problems and resolve them. बच्चा खुद प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अपनी चीज़ों को सीखने लगता है और करने लगता है. सो प्रोसीजर ऑफ चाइल्ड गाइडेंस, देर आर 4 different level at which you can be a set goal, which are as follows: level 1, level 2, level 3, level 4. Fundamental goals, parents goal, goals formulated by the counselor, and the child goals. इन 4 लेवल में हम बच्चे को गाइड करते हैं. फंडामेंटल गोल्स में बहुत ही जनरल चीज़ों को हम लोग टारगेट करते हैं कि हम बच्चे को इन पर्टिकुलर टर्म्स पर, इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर हम बच्चे को गाइड करेंगे. पेरेंट्स गोल में पेरेंट्स से किस किस एस्पेक्ट से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए चिल्ड्रन की, और किस तरह से हम पेरेंट्स को हमें फर्दर उनको भी गाइड या उनको भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है. द गोल फॉर, कुछ गोल ऐसे होते हैं जो काउंसलर खुद डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए, जिनसे रिलेटेड हम इस बच्चे को प्रॉपर अगर गाइड करें तो इसके प्रॉपर डेवलपमेंट और प्रॉपर बिहेवियर ऑब्टेन कर सकते हैं. एक है चाइल्ड गोल. बच्चे को उस बच्चे को बहुत ही स्पेशल रख करके, उसको सेंटर पर रख करके उससे संबंधित गोल हम बनाते हैं. जैसे वो बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पार्ट है. कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो उसके लिए जो गोल्स होंगे वो कुछ और होंगे. अगर कोई बच्चा है तो इंटेलिजेंट, बट he or she is having fear to learn mathematics, he or she is having fear to understand the language, so उसके लिए उस पर्टिकुलर गोल्स जो काउंसलर है वो डिसाइड करते हैं. सो ये 4 लेवल पर बच्चे की गाइडेंस एक्टिविटी होती है. एक इसमें वर्ड है काउंसलर. सो काउंसलर क्या है, क्या काउंसलर गाइड से अलग है, इसको भी हम थोड़ा सा और आगे अंडरस्टैंड करेंगे. बट काउंसलर इज आल्सो गाइड हु प्रोवाइड द प्रॉपर गाइडेंस. बट यहाँ पे एक, चूंकि गाइड गाइडेंस देगा, काउंसलर काउंसलिंग करेगा, तो यहाँ जो एक साइकोलॉजिकल टर्म इसमें आ जाती है काउंसलर्स में, बिकॉज एवरी पर्सन मे बी गाइड, बट
every person cannot be counselor. For being a counselor, a specific quality or specific knowledge is required. So let us discuss counselor in next. Child counselor relationship. जैसे मैंने कहा कि जो काउंसलर है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करता है बच्चों का, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, प्रॉपर गाइड करता है और साथ में उनका एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करता है. द चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द effectiveness of the process. In effective child counselors relationship must be all of the following. यानी कि दोनों जो चाइल्ड है और काउंसलर रिलेशनशिप, यानी कि अगर काउंसलर ने रेपो डेवलप नहीं किया विद द चाइल्ड, so learner will not respond properly and counselor will not aware the fact or actual behavior of the child or actual issues of the child. So इसमें कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? द चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप शुड बी ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन द चाइल्ड वर्ल्ड एंड द काउंसलर. जो चाइल्ड का, जो बच्चे का जो संसार है, दैट इज ए वेरी बिग, because he or she is having lot of imagination, lot of future dreams. और ऐसे में काउंसलर उनके साथ रेपो बनाए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड प्रॉब्लम. चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप शुड बी एक्सक्लूसिव. वो किसी के साथ शेयर ना करें. वो रेपो डेवलप हो कि बच्चे की बात मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा या बच्चा सिर्फ उसी को ही अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा. द चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप शुड बी सेफ. और वो सेफ कैसे हो सकती है? द चाइल्ड इज नॉट परमिटेड टू इंजर हिमसेल्फ. द चाइल्ड नॉट परमिटेड टू हर्ट द काउंसलर. द चाइल्ड इज नॉट परमिटेड टू डैमेज प्रॉपर्टी. मीन्स जहाँ भी बच्चे की काउंसलिंग हो रही है वो बच्चा खुद को, अपने आप को सेफ, मीन्स वो अपने आप को हार्म ना कर सके. इवन कुछ ऐसे वर्ड्स काउंसलर को भी ना निकलें कि काउंसलर भी हर्ट हो जाए. और जो प्रॉपर्टी है आसपास में, जो होम में, घर में जो रखी हुई हैं, वो चीज़ें डैमेज ना करे. तो इसके लिए जो चाइल्ड और काउंसलर का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्रॉपर होने की ज़रूरत है. और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, यस इट इज़ ऑफ कोर्स प्रॉपर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. सो काउंसलर कोई एवरीबॉडी नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरत होती है. द चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप शुड बी ऑथेंटिक. द चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप शुड बी कॉन्फिडेंशियल. क्योंकि जो चाइल्ड और काउंसलर को जो चाइल्ड काउंसलर को जो भी कुछ बता रहा है वो कॉन्फिडेंशियल ही होना चाहिए फॉर अदर्स. द चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप शुड बी पर्पजफुल. चाइल्ड और काउंसलर किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा कि किसी को अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो वो काउंसलर को सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही काउंसलिंग करने की जरूरत है, नॉट फॉर अदर सब्जेक्ट्स. Child guidance and procedures and principles. So I think this is the last unit of this block. So इसमें हम इंटेलिजेंसी को पढ़ेंगे और व्हाट आर द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. आईक्यू पढ़ेंगे हम लोग, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और डिफ्रेंशिएट करेंगे ग्रुप एंड इंडिविजुअल टेस्ट. यानी कि जितने भी हम साइकोलॉजिकल जो टर्म्स हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम इंटेलिजेंसी और इंटेलिजेंस टेस्ट और उसके बेस पे आईक्यू को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. इंटेलिजेंसी को सबसे पहले समझने की जरूरत है. व्हाट इज इंटेलिजेंसी? सो मैनी साइकोलॉजिस्ट हैज गिवन मैनी डेफिनेशंस. स्टैम डिफाइंड दैट इंटेलिजेंसी इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल to consciously adjust his or her thinking to new requirement. यानी कि नई एरिया में नई चीज को समझने के लिए जो भी हमें जनरल कैपेसिटी चाहिए होती है हर व्यक्ति में, वो उसकी इंटेलिजेंसी कहलाती है. अल्फ्रेड बिने ने 1985 में बहुत अच्छी थ्योरी दी. उसने कहा कि इट इज एन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू डायरेक्ट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स ए गोल. किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का, यार जो उसकी एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड द गोल,
उसको हम लोग इंटेलिजेंसी कहते हैं। जीन पियाजे, जो एक एमिनेंट स्विस साइकोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है, रियलाइज दैट इंटेलिजेंसी इज अडेप्टेशन टू फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जो आपका रियल एनवायरनमेंट है, दैट इज सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें जो अडेप्टेशन की जो कैपेसिटी है या उसको रियलाइज करे, वो जो कैपेसिटी है वो इंटेलिजेंस कहलाती है इंडिविजुअल की। A more comprehensive definition came from David Wessler, who has defined intelligence as a global capacity of an individual to act purposefully, think rationally and deal effectively। यानी कि जो purposefully act कर सके, rationally think कर सके और effectively deal कर सके with the environment, ये इसकी इंटेलिजेंसी कहलाती है। It is one of the most accepted definition as it include majority of aspect related to intelligence। So अगर हम define करना चाहें what is as a summary, what is intelligence? So intelligence is the ability to learn, ability to carry out higher process of thought, especially abstract thinking, and the ability to adapt to new situations। So इसमें जितनी भी ऊपर डेफिनेशन जैसे इनको जोड़ करके एक प्रॉपर डेफिनेशन हमने बनाई कि जो सीखने की क्षमता और सोचने की क्षमता और एक तरह से नई सिचुएशंस में किस तरह से हम लोग एक्ट करें, वो उस इंडिविजुअल की इंटेलिजेंसी कहलाती है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनको वन बाय वन पढ़ने की, आई एम जस्ट गिविंग ब्रीफ ओवरव्यू। एक फैक्टर थ्योरी है जिसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंटेलिजेंसी को अफेक्ट करते हैं। सोशल फैक्टर हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, उसका इंडिविजुअल जो फैक्टर है डेवलपमेंट का वो हो सकता है, उनका हेल्थ हो सकता है, उनकी सोसाइटी हो सकती है। इसके बेस पे जो थ्योरी है वो फैक्टर थ्योरी कहलाती है, डिफरेंट फैक्टर्स। एक है यूनिटरी थ्योरी। This theory of intelligence hold the view that intelligence is composed of one factor which is universal of all activities। यहाँ पर किसी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की स्टडी होती है कि जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है। तो ये बेसिकली बहुत सारी थ्योरी, और इनको मुझे लगता है कि आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें गिलफर्ड की थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है, थ्रस्टन की थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दो थ्योरी जो बाय नेम है, इनको आप लोग ये वैन की हायरार्किकल थ्योरी है कि एक प्रॉपर हायरार्की होती है बच्चे की इंटेलिजेंसी को समझने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी इंटेलिजेंसी को शो करती हैं। तो इसको एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। ये है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, उसी का कंटिन्यूएशन है कि ट्राइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज फॉर्मुलेटेड बाय रॉबर्ट जे, और ये एक बहुत ही पायनियर एक्सपर्ट हैं और जिसने रिसर्च किया ह्यूमन इंटेलिजेंसी पर। जैसे कि वाई इंटेलिजेंट पीपल फेल। इंटेलिजेंट पीपल फेल क्यों हो जाते हैं? वो तो फेल होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, दे आर हैविंग द कैपेसिटी, दे आर हैविंग द thought process to act or to adjust in new situations also। so इसकी थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसने आइडेंटिफाई किया कुछ फैक्टर्स को कि जिसमें इंटेलिजेंट पीपल फेल हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड और टू एडजस्ट इन न्यू सिचुएशंस। उसके बाद स्टेनबर्ग आए 1986 में, इन्होंने नंबर ऑफ रीजन दिए वाई सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल फेल। सो इसमें जो मोस्ट ऑफ द रीजन्स हैं वो रीजन्स को लिस्टेड किया है कि नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन और लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो जानता भी है, बट उसको प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है, सो दे हैव फियर और एक्सप्रेशन ऑफ देयर नॉलेज, और that knowledge comes through intelligence। दूसरा इम्पल्सिव कंट्रोल होता है, दूसरा परसिवरेंस होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, देन ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, इनेबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन होता है,
टू लिटिल और टू मच सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तब भी वो पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने में या रिजॉल्व करने में फेल हो जाते हैं। और कई बार लोगों को बहुत लिटिल कॉन्फिडेंस होता है, जिसके फियर से वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते या एडजस्ट नहीं कर पाते या अडेप्ट नहीं कर पाते न्यू सिचुएशंस में। गार्डनर की थ्योरी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंसी पर, ये भी एक अनदर थ्योरी है जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। So Gardner theory argues that intelligence, particularly is a traditionally defined, does not sufficiently this encompass the wide variety of abilities human display. According to multiple intelligence theory, so 8 basically basic टाइप होती हैं इंटेलिजेंसी की। जैसे विजुअल, हम लोग किसी चीज को कैसे हम लोग देखते हैं, उसको भी एक प्रॉपर इंटेलिजेंसी है। वर्बल, हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। लॉजिकल मीन्स मैथमेटिकली हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक है बॉडीली, हम अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज करते हैं, ये काइनेटिक इंटेलिजेंसी कहलाती है। दिस म्यूजिकल, यानी कि किसी सॉन्ग के साथ हम उसको किस तरह से हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं और किस तरह से उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। एंड द मोस्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी और इंट्रापर्सनल, हम लोग अपने आप में खुद में अपने आप को कितना चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, या दूसरे की इंटेलिजेंसी को भी हम लोग यूज करके हम नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। दैट कम्स अंडर द इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। एक है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब जो हमारी नेचुरल इंटेलिजेंसी होती है, दैट इज नॉट फोर्स्ड बाय एनीथिंग, हेरिडिटी और नेट एनी मोटिवेशन, वो हमारी नेचुरलिस्टिक होती है। दूसरी होती है एग्जिस्टेंशियल। इसमें बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है, बाहर से जो एक तरह से सपोर्ट मिलती है, उस समय हम चाइल्ड किस तरह से बिहेव करता है। तो ये थ्योरी है गार्डनर की, जिसने इसको 8 बेसिक टाइप्स माना है इंटेलिजेंसी के। और ये बेसिकली क्यों सीखने की जरूरत है इंटेलिजेंसी का एक टीचर के लिए, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर। सो ईच पर्सन पोसेस ऑल टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस। ये आप सबको पता है, टीचर को पता होना चाहिए कि 8 की 8 इंटेलिजेंसी हर बच्चे में होती है। कुछ एक्टिव हो सकती हैं और कुछ पैसिव हो सकती हैं। जो पैसिव है वो कैन बी डेवलप्ड, दैट कैन बी डेवलप्ड। इंटेलिजेंस वर्क इन कॉम्प्लेक्स वे, यानी कि कई बार 2-3 इंटेलिजेंसी भी मिलकर के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व या अंडरस्टैंड करने के लिए काम करती हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू बी इंटेलिजेंट। सो बहुत सारे तरीके और भी हैं, जैसे हम साइकोलॉजिकल और क्लिनिकल जो हम लोग गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उससे भी इंटेलिजेंस को एक्टिव किया जा सकता है कि वो बच्चे पर्टिकुलर न्यू सिचुएशंस में एडजस्ट कर सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है इसके इंटेलिजेंसी के। इंटेलिजेंस इज मेंटल कैपेसिटी or mental energy available with an individual at a particular time in a particular situation that help an individual in the task of theoretical as well as practical manipulation of things, objects, events। क्या है? एबिलिटी टू लर्न, ये भी एक इंटेलिजेंसी है कि किस तरह से बच्चा पढ़ना के लिए एबिल है। एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं या रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स। एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शंस, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें किस तरह से डिसीजन मेकिंग करें, दैट एबिलिटी इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू सी रेलेवेंट रिलेशनशिप विद ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज, कोई आइडियाज हैं वो रेलेवेंट हैं या नहीं हैं, या वो सच में उस पर्टिकुलर इश्यूज के साथ वो रिलेटेड है या नहीं है, ये एबिलिटी भी इंटेलिजेंस का पार्ट है। एबिलिटी टू एक्वायर्ड नॉलेज टू न्यू सिचुएशंस, ये इंटेलिजेंस को हम डिफाइन करने में ही कह रहे हैं कि नई नॉलेज नई सिचुएशन में वो इंटेलिजेंस ही है। एक्सीलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एज मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट इन एफिशिएंट वर्क,
किस तरह से हम काम को करें, एफिशिएंट में करें, एफिशिएंट तरीके से करें, दैट इज द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक जो एबिलिटी है माइंड की, वो भी इंटेलिजेंस है। किस तरह से हम चीज़ों को एनालाइज करें और सिंथेसाइज रूप में हम उसको अंडरस्टैंड करें। ऑल्दो दिस इज अ पार्ट ऑफ माइंड बट दिस इज आल्सो इंटेलिजेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंसी है, आपको एक चीज बताएं कि मैक्सिमम जो इंटेलिजेंसी है दैट इज मेजर्ड बाय 140, और जिसकी आईक्यू, और दैट इंटेलिजेंसी इज मेजर्ड बाय आईक्यू, इंटेलिजेंस क्यूशेंट। सो अब आईक्यू के बेस पर हम चाइल्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर जो आईक्यू है वो अबव 140 है तो वो पर्सन जीनियस होगा, और उसके लिए स्पेशल अटेंशन चाहिए बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टेट। जो भी जहाँ भी वो बच्चा पढ़ रहा है उसको एक प्रॉपर और स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है। जिनकी आईक्यू 130 से 139 है या 110 से 119 है वो वेरी सुपीरियर होते हैं, उनको लिए ऑर्डिनरी स्कूल चलेगा, बट एज फार एज जीनियस उनके लिए स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। देन सुपीरियर्स में आते हैं 120 से 129 और 100 से 19, ये भी ऑर्डिनरी स्कूल्स में है। इवन इसके नीचे जिनको हम एवरेज, यानी जिनका आईक्यू 89 से 90 तक है, वो लोग एवरेज में आते हैं। उनको ऑर्डिनरी स्कूल तो चलेगा बट उनको स्पेशल क्लासेस चाहिए, दे मे बी द स्लो लर्नर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज बॉर्डर लाइन है जो आपका 70 टू 79 है, लेकिन कुछ हैं जो 60 टू 69 वो मेंटली डेफिशिएंट होंगे और उनको लिए स्पेशल या इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है। और ऐसे में जो आपके जो ये स्पेशल काइंड ऑफ जो हैं स्कूल्स और जो मेडिकली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर इन बच्चों का आईक्यू डेवलप करने का या उनको इंटेलिजेंसी उनकी डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। सो बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। आईक्यू के बेस पर जीनियस, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, एवरेज, या किस तरह का डल एवरेज है, बॉर्डर लाइन है, या मेंटली डेफिशिएंट है, डेट डिसाइडेड बाय आईक्यू। और हम को बच्चे को जो हम टेस्ट लेते हैं, आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट जो लेते हैं, उसके बेस पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं बच्चे की कैटेगरी की, वो किस टाइप का बच्चा है। किस तरह से एसेस करते हैं बताने का तरीका बताया कि आईक्यू इज मेजर्ड बाय MA ऑब्लिक CA मल्टीप्लाई बाय 100। MA मतलब मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड। फॉर एग्जांपल क्रोनोलॉजिकल एज मींस एक्चुअल एज। अगर बच्चा 15 साल का है तो दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन बच्चा अगर बिहेवियर 8 साल के जैसे कर रहा है तो दैट विल बी एज मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड। तो इस फार्मूले को यूज करके आप लोग आईक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बच्चे का कि, और ये जो बिहेवियर पैटर्न है ये साइकोलॉजिकल लैब या टेस्ट में डिफाइंड होते हैं कि एक 8 साल के बच्चे से ये अपेक्षा की जाती है कि इस पर्टिकुलर एक्ट पर इस तरह से बिहेव करे। तो बाय यूजिंग दैट चार्ट और इंडेक्स वी कैन कैलकुलेट द आईक्यू ऑफ द चाइल्ड। और आईक्यू जब निकल जाता है देन वी कैन क्लासिफाई द बच्चा जीनियस है या एवरेज है या सुपर एवरेज है, वट एवर द चाइल्ड इज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ये आईक्यू को हम लोग किस तरह से निकालते हैं उसके लिए एक टेस्ट भी है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट एंड देयर आर वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द इंटेलिजेंस टेस्ट। तो टेस्ट एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है जिसमें एक इंडिविजुअल बच्चे को टेस्ट किया जाता है। कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं और कुछ होते हैं जो उसकी वर्बल और लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड और एनालाइज करने के लिए किए जाते हैं। तो दीज ऑल 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ एक को पढ़ रहे हैं हम लोग कि किस तरह से वर्बल और ये लैंग्वेज टेस्ट हैं। तो
तो एक टेस्ट है जो वोकेबुलरी को अंडरस्टैंड करने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं हम वोकेबुलरी टेस्ट। एक बच्चे की मेमोरी किस तरह की है, वेदर द पर्सन इज एबल टू रिकॉल द और रिकॉग्निशन द थिंग्स और आइटम्स, उसके लिए मेमोरी टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है कि बच्चा की एबिलिटी क्या है, ग्राफ्स एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू रिएक्ट इन गिविंग सिचुएशन। अगर इन एबिलिटी को आपको एनालाइज करना है या इनको इनके बेस पे बच्चे का जो आईक्यू लेवल निकालना है, उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट यूज करना होगा। इंफॉर्मेशन टेस्ट है, रीजनिंग टेस्ट है और एसोसिएशन टेस्ट है। The most important is the all tests are available in National Psychological Lab. All psychological labs are available in National Psychological Lab. One can use, even one can Google also, कि अगर कोई पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में गूगल करना चाहे टीचर, उस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में गूगल से भी पता चल सकता है कि वो किस टाइप का टेस्ट है, उसमें कितने आइटम्स हैं और बेसिकली वो क्वेश्चनेयर किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई, मेजर और एनालाइज करने के लिए डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, ये सेम बात है कि इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट होते हैं या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं या ग्रुप वर्बल टेस्ट होते हैं या ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। बेसिकली जो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है उसमें लैंग्वेज को मेजर किया जाता है और इसके लिए एक स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है, वो अवेलेबल है साइकोलॉजिकल लैब में, जिसके बेस पर हम लोग वर्बल टेस्ट करते हैं बच्चों पर, वो इंडिविजुअली दिया जाता है। एक परफॉर्मेंस टेस्ट भी है, इसको हम लोग अलेक्जेंडर बैटरी भी बोलते हैं या पिंटर्स पेटर ऑन स्केल बोलते हैं, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, लेकिन वो भी इंडिविजुअली। अब जो ग्रुप वर्बल टेस्ट है, जब बहुत सारे बच्चों को टेस्ट दिया जाता है, उसमें आर्मी अल्फा टेस्ट है या आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट है, वो 10, 20, 30, 50 बच्चे के ग्रुप को दिया जाता है और तब टेस्ट किया जाता है उनका वर्बल कैपेसिटी। यहाँ एक नॉन वर्बल टेस्ट भी है इंटेलिजेंसी का, जिसमें और बेसिकली दैट इज बीइंग यूज इन ए kind of this individually. Sorry, non-verbal means that is a kind of these tests do not necessitate the use of language and are applicable to a large group of individuals and at a time, means एक समय में हम बहुत सारे ग्रुप को ये टेस्ट कर सकते हैं और ये नॉन वर्बल होगा, मीन्स राइटिंग फॉर्म में होगा या रिटन फॉर्म में होगा या प्रिंट फॉर्म में होगा। और इसके में भी आर्मी बीटा टेस्ट है या ये चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट है। दीज टेस्ट आर आल्सो अवेलेबल इन नेशनल साइकोलॉजिकल लैब। नॉन वर्बल और नॉन लैंग्वेज टेस्ट भी एक है, जिसमें हम बच्चों की जो टिपिकल चीज़ होती हैं, यानी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो चीज़ हैं कि विच चाइल्ड इज नॉट, उनका परफॉर्मेंस का कोई इशू है या नहीं है, उसको हम लोग इस नॉन वर्बल और नॉन लैंग्वेज टेस्ट से उसकी जो पर्टिकुलर इंटेलिजेंसी है वो मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चाइल्ड साइकोलॉजी। और चाइल्ड साइकोलॉजी में गाइडेंस क्या होती है, गाइड क्या होता है, काउंसलर क्या होता है, काउंसलर एंड चाइल्ड के बीच में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद में जो ये डिफरेंट काइंड के जो इंटेलिजेंसी क्या होती है, इंटेलिजेंस को किस तरह से मेजर करते हैं, आईक्यू के बेस पर किस तरह से बच्चों का क्लासिफिकेशन किया जाता है और किस तरह की टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। सो दैट हमने कोशिश किया कि इन सबको समझने का कोशिश करें। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट स्लॉट में, नेक्स्ट स्लॉट विल बी स्टार्टेड फॉर मी after 4-5 days or next to next week, although that will be dedicated to MES 085, but as I said that we will cover remaining 2 blocks first, then we will take MES 085 because we have ample time to cover both these remaining 2 blocks and
the blocks of MES 085, because just MES 085 is activity based sessions. So we will try to complete these remaining two in next slides. So this is from my side. I am stopping sharing. If you have still any issue, one क्वेश्चन हैज बीन रेज बाय दिलीप आल्सो दैट आई कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप अपने स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर को एक मेल कर दीजिए, और यू कैन योरसेल्फ डाउनलोड द आई कार्ड बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल. आपको एक लॉगिन आईडी यानी कि एनरोलमेंट आपका लॉगिन आईडी है, और एनरोलमेंट ही आपका पासवर्ड है अगर आपने चेंज नहीं किया. जो एनरोलमेंट नंबर है दैट इज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इज आल्सो एनरोलमेंट. So thank you for being with me. Have a good day and good night. We will meet in next coming session. Thank you.